Hello students. So students, in the last part of the video, we have studied how to solve linear inequalities in two variable with the help of graphical method. Okay. And based upon that method students, we have solved few questions. Okay. So in today's video students, we are going to start exercise 6.2. Okay. In this video, we will discuss exercise 6.2 from NCERT. Okay. See student, what is the question in NCERT 6.2 exercise? Solve the following inequalities graphically in two-dimensional plane. Two-dimensional plane means xy plane, okay? See, there are total 10 questions and out of 10 questions, you have to solve them with the help of graphical method. Graphical method or two-dimensional plane method, okay? So first question I have already told you student. Second type of question also I have told you. Third type of question also I have told you. Now fourth question, okay? First three question you can do by yourself. Method will be same for all question. Whatever I told you in the previous video, that method will be same for solving all the questions, okay? So I am going to start from question number 4. What is question number 4? Okay? Question number 4 is y plus 8 is greater than or equal to 2x. Okay, this is the inequality. Okay, and you have to solve them with the help of graphical method. So again, very simple. Whatever inequality is there, first what you do, you consider it as a straight line. Okay, so first what we will do student, first we will draw the graph of y plus 8 is equal to 2x. ठीक है, मान लेते हैं कि दिस इज अ इक्वेशन और इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं. वट एवर इनइक्वालिटी इज गिवन, फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. सपोज इन प्लेस ऑफ दिस इनइक्वालिटी साइन we have the equation. So what will be the equation? Y plus 8 equal to 2x. So it is a linear equation in two variable. Now I have to draw the graph of this equation. Okay, so first what we will do, we will take 2 points. First is on x-axis and the next is on y-axis. So at x-axis student, y will be 0. Okay, so when we will put the value of y in this equation, so y plus 8 is equal to 2x. So 0 plus 8 equal to 2x, or we can say 8 equal to 2x. So from here the value of x will be x equal to 8 by 2, it means 4. Okay, so the point on the x-axis will be 4, 0. Similarly student, one more point we will find out on y-axis, at y-axis. Okay, so at y-axis x will be 0. Now put the value of x in this equation. So y plus 8 is equal to 2x was there. So y plus 8 will be equal to 2 into 0, or y plus 8 equal to 0. So y will be equal to minus 8. So on y-axis the point will be 0, minus 8. Okay, so 2 points we have calculated. Now we will draw this straight line in the xy plane. So first we will draw xy plane like this. ठीक है, xy plane like this. Okay, it is x dash it is y dash. Okay, now suppose it is 1 2 3 4 5. It is minus 1 minus 2 minus 3 minus 4. Similarly 1 2 3 4 5 6 7, and in the downside minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 minus 9. Why I have written this much only? Because on y-axis we got 0, minus 8. So up to minus 8 I have written. Okay, so let's represent these 2 points on xy plane. So y 4, 0 will lie on the x-axis and this point will be here. ठीक है, this will be our 4, 0, this point, and 0, minus 8 will lie on the negative y-axis. So this will be 0, minus 8. Okay, now join these two lines. Now student, whenever we will join these 2 points, we will get a line, and
we have to decide whether we will draw the dark line or we will draw the dotted line. So by seeing the inequality, we will draw either dark line or dotted line. Okay, so see, it is a slack inequality, and I told you in case of slack inequality we draw the dark line. So we will draw a dark line. Okay, so the dark line by joining these 2 points will be here like this. ठीक है, this will be the line. Okay, when you will draw with your scale, this will be straight. Okay, so this is the line. ठीक है, now when we have drawn this line, by seeing the inequality we can say whatever line we will draw, that will be dark line, because there is slack inequality. Okay, in case of strict inequality we draw dotted line. Now after drawing this line, this xy plane divided into 2 parts, 2 half plane. The portion which is above the line is known as upper half plane, and the portion which is below the line is known as lower half plane. So just above the region which is just above the line, which is known as upper half region. So this all region above the line will be upper half region, and all region below the line will be lower half region. Okay, now we have to see whether this inequality will lies. Okay, where this inequality will lies. So students, see, this is given na, this is given na. So you know the general form of the linear equation. You all know the general form of linear equation. So what we can say, student, if I have, see, this inequality is there, we generally see x and y in the same side. We generally see the x and y are in the same side, but here is y and here is x. ठीक है, here is y and here is x. ठीक है, so which region we will take? See, again by taking 0 0 reference point, we can determine which region we will take. ठीक है, which region we will take. So I hope up to here you have understood. Okay, up to here you have understood. Now reference point we will take, reference point, see, it is reference point, and reference point we take always origin. ठीक है, origin, that is 0, 0. Now we have to decide which region we will take, the upper half region or lower half region. So we will take a reference point. ठीक है, reference point is origin, and this origin is lying where, student? This origin is lying where? In the upper half region of the line. मतलब कि ये जो origin है इस line के रिस्पेक्ट में किधर है? अपर. तो अगर origin की वैल्यू पुट करने पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है तो हम लोग अपर हाफ रीजन लेंगे. अपर हाफ रीजन इसलिए लेंगे क्योंकि origin किधर था? अपर हाफ में, और सेटिस्फाई करती है तो उसका मतलब जिस साइड origin होगा उसी साइड वाला रीजन हम लोग लेंगे, दैट इज अपर हाफ रीजन. और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो इट मींस अपोजिट वाला रीजन लेंगे, दैट इज लोअर हाफ रीजन. तो देख लेते हैं एक बार. इनइक्वालिटी वाज y plus 8 is greater than or equal to 2x ना. Put the value 0, 0. ठीक है, so see, when we will put 0, 0, so 0 plus 8 is greater than or equal to 2 into 0. ठीक है, so 8 will be greater than or equal to 0. So this inequality comes after putting the value of origin in the above inequality. Now student, 8 is greater than 0. 8 is greater than 0. Yes, 8 is greater than 0. So by putting the value of origin in the given inequality, we got that whatever inequality is coming, that is correct. This is correct. This is correct. ठीक है, when we will take greater than sign, then 8 will be greater than 0, and 8 is always greater than 0. So see, by putting the value of origin, the inequality satisfies. So we can say, because origin is lying in the upper half plane, because origin is lying in the upper half plane to the line, and after putting the value of origin in the inequality satisfied. That's why we will take the upper half region. Means whatever, which region we will take, student? We will take this region. ठीक है, this region, the upper half region we will take as the solution of this linear inequality. Okay, see,
इसके पहले वाले में क्या होता था कि ओरिजिन जो होता था वो लाइन के लोअर हाफ में आता था, तो वो कहीं भी आ सकता है जिधर वो लाई कर रहा है। अगर उधर में ओरिजिन की वैल्यू पुट करने पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है तो जिस साइड ओरिजिन होगा वही वाला रीजन लेंगे, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसके अपोजिट वाला रीजन, दैट इज लोअर हाफ रीजन। तो सेटिस्फाई किया तो इट मींस वी कैन से दैट दिस विल लाई ऑन द अपर हाफ रीजन ऑफ द साइड। ओके, so please note down it. ये सारा रीजन, जितने भी रीजन ऊपर होंगे इस लाइन के ऊपर, और जो भी पॉइंट्स इस लाइन पर आ रहे होंगे वो सारे क्या होंगे, सोल्यूशन। देखो जब स्लैक इनइक्वालिटी का साइन आता है स्टूडेंट, स्लैक इनइक्वालिटी का साइन आता है तो मतलब कि लाइंस पे जितने पॉइंट्स होंगे वो तो सोल्यूशन होंगे ही, उसके अलावा कौन सा रीजन होगा, तो यहाँ पर अपर हाफ रीजन आया है, लाइन का अपर हाफ रीजन। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, मेथड वही सेम है, कोई भी इनइक्वालिटी दिया हो उसको स्ट्रेट लाइन मान के उसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद दो रीजन में बढ़ जाएगा, या तो लोअर और अपर, या तो हाफ एंड लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद आपको चेक करना है कि कौन सा रीजन हमको लेना है, तो रीजन कौन सा होगा, लेंगे हम लोग ओरिजिन को रेफरेंस मान के। पहले हम देखेंगे कि ओरिजिन किस साइड है, तो ओरिजिन लाइन के पता चल जाएगा कि लोअर में है या अपर में है। उसके बाद ओरिजिन की वैल्यू इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन जिस साइड होगा वो वाला रीजन लेंगे, और अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो अपोजिट वाला रीजन, लाइन के अपोजिट वाला रीजन मींस लोअर हाफ रीजन। दो रीजन है, एक ये वाला रीजन और एक नीचे वाला रीजन, तो ओरिजिन अपर में था और अपर में पुट करने पर सेटिस्फाई किया तो मतलब कि ये रीजन इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये रीजन का मतलब कि ये मूव करता रहेगा, ये इसके आगे भी जाएगा, इस लाइन के ऊपर जितना भी रीजन होगा वो सब इसका सोल्यूशन होगा, एज वेल एज द पॉइंट्स विचिंग लाइन ऑन द लाइन। सोल्यूशन में क्या होगा, इसका अपर हाफ रीजन और whatever points are lying on the line that will also consider as a solution। जब लाइन डॉटेड होती है तब सोल्यूशन काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जब लाइन डार्क होती है तो लाइन को भी काउंट करते हैं, लाइन के पॉइंट्स भी सोल्यूशन में काउंट करते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, सो प्लीज नोट डाउन इट। So student, by this we have completed question number 4. Now 5, 6, 7, 8 are similar questions, same questions. So out of these 5, 6, 7, 8, I am going to tell you 7. Okay, because it is little bit different. Not little bit different, only by seeing it is looking different. So 7 question is that if I will tell you 7, then you can solve the remaining, that is 5, 6 and 8. Okay, all questions are same. So 3x minus 3x plus 2y is greater than or equal to minus 6. ठीक है, you have to find the solution of this with the help of graphical method. So again students, same thing. First we will draw graph of equation, means minus 3x plus 2x इक्वल टू माइनस 6। पहले जो भी दिया होता है एक्सप्रेशन उसको इक्वेशन मार के उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अगेन सेम प्रोसेस, ऑन एक्स एक्सिस y will be 0, so put the value of y in this equation 0, so minus 3x plus 2 into 0 equal to minus 6, so minus 3x plus 0 equal to minus 6 or minus 3x equal to minus 6, so x equal to 2, x equal to 2 will come, so the points on the x axis will be 2, 0. Similarly on y axis or at y axis, x will be 0, so put the value of x in this equation 0, so minus 3x plus 2y equal to minus 6 was there, so when you will put x equal to 0, so minus 3 into 0 plus 2y equal to minus 6, it will become 0 only, so 0 plus 2y equal to minus 6 or 2y equal to minus 6 or y equal to minus 3, so point on y axis will come 0, minus 3. So we have calculated 2 points, one each on x axis and y axis. Now we will represent in xy plane, so we will draw xy plane like this. X two-dimensional plane means xy plane. Okay, now so 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2, 3, 4,
-1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। So on x-axis we got 2, 0. So 2, 0 will lie on the positive x-axis. So here will come 2, 0. ठीक है। And 0, -3. 0, -3 will come in on the negative y-axis, that is 0, -3. So now we have to join these 2 points. So let's join. ठीक है। So this is the graph of line -3x plus 2y equal to -6. This is the graph of a line which is -3x plus 2y equal to -6. We have drawn the graph, so half the thing is done. ठीक है। Again, after drawing the line, we have divided this xy plane into 2 half planes. One plane which is above the line is known as upper half plane, and the other one which is lying below the line is known as lower half plane. Okay, so now we have to decide. Now one more thing I want to tell you, whether we will draw dark line or dotted line. So whenever you will see strict inequality, this is known as strict inequalities, greater or less. So whenever you will see strict inequalities, so whatever line you will draw, that will be dotted. ठीक है, dotted means the solution on the line we will not count, the points on the line we will not count as a solution. Solution क्या होता है किसी लाइन का? किसी लाइन का सॉल्यूशन उस लाइन पे जो पॉइंट्स आ रहे होते हैं वही इसका सॉल्यूशन होता है। तो अगर आपको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज दिखती है तो जो भी लाइन ड्रॉ करोगे उस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे वो सॉल्यूशन में काउंट नहीं होंगे, और इसीलिए उस लाइन को हम लोग क्या बनाते हैं? डॉटेड। सो दिस लाइन विल बी स्टूडेंट डॉटेड, ठीक है, नॉट इट, दिस विल बी डार्क लाइन ओनली, सॉरी, this will be dark line because in this question slack inequality comes. ठीक है, I told you whenever you see strict inequalities के केस में dotted line और slack inequalities के केस में dark line. So यहाँ पे slack inequalities है, पहले आप ग्राफ बना लेना, फिर देखना कि slack है या dotted, slack है या strict. slack रहेगा तो जो बनाए वो ठीक है, और अगर मान लो strict inequalities है तो उसी को dotted कर देना। dotted करने के लिए आप इरेजर से बीच डैश इरेज कर देना तो वो डॉट बन जाएगा। ठीक है, तो लाइन के बारे में आपको पता चल गया कब हमको डॉटेड लाइन बनानी होती है, कब हमको डार्क। डॉटेड लाइन तब बनाते हैं जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होती है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का 2 साइन होता है, एक ग्रेटर का और एक लेस का। और डार्क तब बनाते हैं जब वहां पे स्लैक इनइक्वालिटी होती है। स्लैक इनइक्वालिटी मतलब या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर यही है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ पे डार्क लाइन बनाए। ठीक है, अब देखो लाइन के ऊपर वाला रीजन अपर हाफ रीजन, लाइन के लोअर वाला रीजन लोअर हाफ रीजन। अब कौन सा रीजन लेंगे हम लोग? ठीक है, सॉल्यूशन में ये लाइन के पॉइंट्स भी आएंगे और कोई एक रीजन आएगा जिसमें ये लाई करेगा। ठीक है, तो फिर से चेक करेंगे कौन सा रीजन हमको लेना है। ठीक है, कौन सा रीजन हमें लेना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो इसके ऊपर वाला रीजन को क्या बोलेंगे? फर्स्ट, और इसके नीचे वाले रीजन को सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा लेना है? तो फिर से रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट लेट ओरिजिन। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट लेट ओरिजिन, एंड ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अब इस 0,0 को पुट करके देखते हैं कि क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी इज दैट -3x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 0,0, so 3 into 0 plus 2 into 0 is greater than or equal to -6. So it will be 0 and this will also be 0, greater than or equal to -6. So 0 is greater than or equal to -6. क्या ये इनइक्वालिटी सही है स्टूडेंट? क्या 0 -6 से बड़ा होता है? यस। अगर ये वाला साइन मत देखो इक्वल टू वाला, इसका मतलब क्या हुआ? या तो 0 -6 से बड़ा हो या 0 -6 के बराबर हो। तो -6 के बराबर तो होगा नहीं, इस केस में 0 -6 के बराबर तो होगा नहीं। इसका मतलब 0 जो है वो -6 से बड़ा है। ये इनइक्वालिटी आ रही है। और देखो जब हम लोग 0 0 पुट किए थे तो जो भी इनइक्वालिटी आई वो क्या सही है? यस, इट इज ट्रू। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -6। अब देखो कि ये जो ओरिजिन था हमारा, ओरिजिन दैट इज ओरिजिन का पोजीशन जो है वो लाइन के रिस्पेक्ट में किधर है? लाइन के रिस्पेक्ट में ऊपर है या लाइन के रिस्पेक्ट में नीचे है? तो बाय देखने से लग रहा है कि जो ओरिजिन है वो लाइन के रिस्पेक्ट में अपर हाफ रीजन में लाई कर रहा है। ठीक है, अपर हाफ रीजन में लाई कर रहा है। और जब ओरिजिन की वैल्यू इनइक्वालिटी में पुट किए तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई किया। तो अगर सेटिस्फाई कर जाए तो जिस रीजन में भी ओरिजिन आ रहा होगा, अगर सेटिस्फाई करे तब,
तो जिस रीजन में भी ओरिजिन आ रहा होगा वही रीजन हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। सो ओरिजिन हमारा अपर रीजन में आ रहा है, सो इस लाइन के ऊपर जितना भी रीजन होंगे, इस लाइन के ऊपर जितने भी रीजन होंगे इंक्लूडिंग द लाइन ऑल्सो विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। लाइन तो होगा ही, क्योंकि लाइन तो डार्क है, लाइन डार्क है तो लाइन में जितने पॉइंट्स आएंगे वो भी सोल्यूशन होंगे, और उस लाइन के ऊपर जितने भी रीजन होंगे वो भी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, so please note down it. Now student, question number 8 is also same, so that question you can do by yourself. Okay, that question you can do by yourself. Very easy concept is there. कोई भी इनइक्वालिटी दिए हो उसका लाइन समझ के क्या ड्रॉ कर दो, ग्राफ। फिर इनइक्वालिटी का साइन देखो कि वो स्लैक है स्ट्रिक्ट, अगर स्लैक है तो लाइन डार्क रहेगी, अगर स्ट्रिक्ट है तो डॉटेड रहेगी। डॉटेड और डार्क लाइन ये शो करता है कि अगर डार्क लाइन है तो उस लाइन के सोल्यूशन भी लेंगे, उस लाइन के पॉइंट्स भी सोल्यूशन में काउंट होंगे, और डॉटेड लाइन है तो उस पॉइंट के, उस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे वो सोल्यूशन में काउंट नहीं होंगे अगर डॉटेड है तो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 और 10 एक ही जैसा है। y is less than -2। ठीक है, y is less than -2। अब ध्यान दो, ये लीनियर इनइक्वालिटी है लेकिन कितने वेरिएबल में है, एक वेरिएबल में है। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो मेथड तो सेम ही है स्टूडेंट, मेथड विल बी सेम। लाइक कंसीडर दैट ड्रॉ, इसको हम लोग इक्वेशन मार के सॉल्व कर लेंगे। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, जो भी इनइक्वालिटी दिया हो पहले उसका जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो इक्वेशन मान के ही करते हैं। लेट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -2। ठीक है, y इक्वल टू -2। देखो स्टूडेंट, अगर किसी एक वेरिएबल में इक्वेशन दिया होता है, किसी एक वेरिएबल में x इक्वल टू 5 या y इक्वल टू -2, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 7 लाइक दिस, अगर एक वेरिएबल में इक्वेशन दिया होता है तो इसका मतलब वो एक तरह की पैरेलल लाइन होती है। क्या होती है, पैरेलल लाइन। ठीक है, अब देखो मैंने क्लास 10th में आपको बताया था कि इफ x इक्वल टू a है तो दिस लाइन रिप्रेजेंट द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर x की वैल्यू दी है तो मतलब कि जो लाइन बनेगा वो किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के, और अगर y की वैल्यू दी हुई है तो जो लाइन बनेगा वो किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के। ठीक है, अब ये पता कैसे चलता है कि ये पैरेलल होगा या नहीं, तो मैं ऐसा ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको। मान लो मैंने लिया x इक्वल टू 3, इसका आपको ग्राफ बनाना है फॉर एग्जांपल। तो मैंने लाइन ये ड्रॉ किया। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। नाउ सी स्टूडेंट, अगर ऐसा लिखा होता ना x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। आपने क्लास चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब देखो मान लो अब x की वैल्यू तो फिक्स है ना, x इक्वल टू 3 दिया हुआ है। जब y 0 होगा तब भी x कितना होगा, 3। जब y 0 होगा तब भी x कितना होगा, 3। y 0 कहां पर होगा, देखो y की वैल्यू मान लो मैं बढ़ाते जा रहा हूं। ठीक है, जब y 0 होगा, मान लो एट y इक्वल टू 0 तब भी x कितना होगा, 3। एट y इक्वल टू 1 तब भी x क्या होगा, 3। एट y इक्वल टू 2 तब भी x क्या होगा, 3। मतलब कि y की वैल्यू हम चेंज करते जा रहे हैं लेकिन x की वैल्यू में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। ठीक है, y बढ़ाते जाओगे। अब देखो ध्यान दो, अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, जब y 0 था तो x कितना है, 3। तो इस केस में जो कोऑर्डिनेट आएगा स्टूडेंट, इस केस में जो कोऑर्डिनेट आएगा मैं नीचे लिख दे रहा हूं। मान लो कि इफ अगर एट y इक्वल टू 0 x विल बी 3, क्योंकि क्यों x 3 होगा, क्योंकि x इक्वल टू 3 क्वेश्चन था, क्वेश्चन वाज x इक्वल टू 3, और क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि क्वेश्चन में x की वैल्यू y पर डिपेंड करेगी नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में y है ही नहीं। अरे x इक्वल टू 3 तो है, y तो है नहीं, तो जब y है ही नहीं तो डिपेंड करेगा ही नहीं, y की कुछ भी वैल्यू ले ले। तो अगर x इक्वल टू 0 है तो y कितना, सॉरी y इक्वल टू 0 है तो x कितना है, 3। तो इस केस में जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 3,0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही जब y इक्वल टू 1 होगा तब भी x कितना होगा, 3।
इस केस में कोऑर्डिनेट 3,1। ऐसे ही जब y इक्वल टू 2 होगा तो x तब भी क्या होगा 3, तो 3,2। ऐसे ही जब y इक्वल टू 3 होगा तब भी x क्या होगा 3। ऐसे ही आप निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो, ठीक है, कि जब y कितना होगा -1 तब भी x कितना होगा 3, तो इस केस में 3,-1। अब इन सारे पॉइंट्स को आप जब जरा xy प्लेन में जब रिप्रेजेंट करोगे तो 3,0 यहां पर आएगा, 3,0 यहां पर आएगा, 3,1 ऊपर आएगा जस्ट ऊपर इसके, 3,2 इसके जस्ट ऊपर आएगा, 3,3 इसके जस्ट ऊपर, 3,4 इसके जस्ट ऊपर। ऐसे ही 3,-1 इसके जस्ट नीचे, 3,-2 इसके जस्ट नीचे, मतलब कि ऐसे नीचे आता जाएगा, ठीक है। और जब इन्हीं सारे पॉइंट्स को स्टूडेंट ज्वाइन करोगे, ऐसे ज्वाइन करोगे तो एक लाइन मिली आपको, ये लाइन मिली, और ये लाइन ही किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस की पैरेलल है। इसीलिए बताया गया था आपको कि अगर आपको किसी एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर लाइन पैरेलल किसके हो, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो उस लाइन का जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू b टाइप का होता है, जहां पे b एक रियल नंबर होता है। सिमिलरली लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, तो उस केस में x इक्वल टू a होता है, ठीक है। अगर x की वैल्यू दी है, अगर एक वेरिएबल में है और x की वैल्यू दी है, तो इसका मतलब जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। और अगर y की वैल्यू दी हुई है तो वो लाइन, जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के। तो अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये कांस्टेंट फंक्शन होते हैं स्टूडेंट, जो एक वेरिएबल वाले फंक्शन होते हैं उसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती है। तो y इज लेस देन -2 गिवन था, तो मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल टू -2। अब देखो y की वैल्यू गिवन है, x तो है ही नहीं, वैल्यू दी हुई हो तो जो भी लाइन मिलती है हमको वो किसके पैरेलल होती है, x के पैरेलल। और अगर x की वैल्यू दी होती है तो जो भी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं वो किसके पैरेलल होती है, y के। तो ये y की वैल्यू दी हुई है ना, तो अगर y की वैल्यू दी हुई है तो जो भी लाइन बनेगा, लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। ये तब होता है जब केवल एक वेरिएबल में होता है, ठीक है, जब केवल एक वेरिएबल में होगा। और अगर ऐसे ही x की वैल्यू दी होती, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, तो उसका मतलब जो भी लाइन ड्रॉ होगा वो किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के। तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, x डैश y डैश, ठीक है। नाउ 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब देखो -2 y इक्वल टू -2 कहां पर होगा, y इक्वल टू -2 यहां पर होगा, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट, 0, -2, ठीक है। अब हमको पता है, इस जैसे हमने y की वैल्यू देखा, हमको पता चल गया जो भी लाइन मिलेगा वो किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के। तो इसी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो जो कि किसके पैरेलल हो, x एक्सिस के। तो ये यही जो लाइन होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू -2, ठीक है। क्योंकि x बढ़ाते जाओगे तब भी y की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। ये तो हो गया, तो ये y इक्वल टू -2 का ग्राफ हो गया। अब डिसाइड करना है, अब देखो जैसे ही आपने ड्रॉ किया फिर से ये अपर रीजन और लोअर रीजन में डिवाइड हो गया। लाइन के ऊपर वाला रीजन क्या होगा, फर्स्ट, ये होगा नीचे वाला सेकंड। अब कौन सा रीजन लेना है, तो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट क्या लेते हैं हम लोग, रेफरेंस पॉइंट लेट ओरिजिन, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट लेट ओरिजिन। सो पुट करते हैं इस इनइक्वालिटी में कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 इनइक्वालिटी क्या था, y इज लेस देन -2, y की वैल्यू पुट करोगे, अगर इसमें x तो है ही नहीं तो केवल y ही पुट करेंगे, तो 0 इज लेस देन -2। तो जब ओरिजिन की वैल्यू पुट किए तो क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई किया, क्या 0 -2 से क्या होता है, छोटा होता है, क्या 0 -2 से छोटा होगा, नहीं, 0 सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है, 0 पॉजिटिव नंबर से छोटा और नेगेटिव नंबर से बड़ा। तो देखो ये हमारा ओरिजिन तो यहां था ना, दिस इज द आर ओरिजिन, दिस इज आर ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। और जो ओरिजिन है स्टूडेंट, जो ओरिजिन है
दैट ओरिजिन इज लाइंग ऑन द अपर साइड ऑफ द लाइन, अपर हाफ रीजन ऑफ द लाइन। और जैसे ओरिजिन की वैल्यू हम लोग इनइक्वालिटी में पुट किए तो इनइक्वालिटी हमारा सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। तो इसका मतलब ओरिजिन जिस भी रीजन में होगा वो रीजन हमको नहीं लेंगे। सेटिस्फाई कर जाता तो हम लोग वही रीजन लेते जिस रीजन में ओरिजिन है, लेकिन ओरिजिन के रेफरेंस पॉइंट पुट करने पर हमारा इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं किया। तो अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो हम लोग वो रीजन लेते हैं जिसमें ओरिजिन नहीं है, तो ये वाला रीजन लेंगे, ठीक है, सेकंड रीजन। ओरिजिन वाला रीजन नहीं लेंगे क्योंकि सेटिस्फाई नहीं किया था। तो जो हमारा रीजन होगा स्टूडेंट वो होगा इस लाइन के नीचे सब, ठीक है। अब एक चीज और, एक चीज तो आप भूल ही आ रहे हो, इस इनइक्वालिटी का साइन, इस इनइक्वालिटी का साइन क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो ये जो लाइन ड्रॉ करोगे आप पैरेलल वाली, दैट विल बी डॉटेड, ठीक है। ये आप बाद में भी कर सकते हो, पहले डार्क बना लो फिर इनइक्वालिटी देख के डॉटेड या डार्क कर लो। अगर स्लैक इनइक्वालिटी है तो डार्क ही रहेगा, और अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो डॉटेड रहेगा। तो मतलब कि इसके नीचे की जितना भी रीजन होगा वही इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, पहले मैंने x इक्वल टू वाई इक्वल टू -2 का ग्राफ ड्रॉ किया। अगर y की वैल्यू दी होती है एक वेरिएबल में y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, तो वो एक पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और वो किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के। तो पहले वो पॉइंट देख लेना कि वो पॉइंट है कहाँ, -2, जिसे था ना y इक्वल टू -2। तो इस पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, -2 होगा। तो यहाँ पे पॉइंट होगा, वहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देना। उसके बाद चेक कर, दो रीजन में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट अपर रीजन एंड लोअर रीजन। Now we have to decide which region we have to take. So we will take origin as a reference. Origin upper region में था, जब origin की वैल्यूज इनइक्वालिटी इनपुट किए तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब जिस रीजन में भी origin है वो रीजन हम नहीं लेंगे, उसके अपोजिट वाला रीजन लेंगे। तो अपोजिट वाला रीजन कौन सा था, सेकंड वाला। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन होगा वो सेकंड रीजन में आएगा। और एक चीज और, ये लाइन का जो लाइन है ना, लाइन सोल्यूशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूशन में काउंट तब होता जब स्लैक इनइक्वालिटी होता। तो मतलब कि इसका जो सोल्यूशन है वो इस लाइन के जस्ट नीचे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आई होप इट इज क्लियर टू यू, तो प्लीज नोट डाउन इट, ठीक है। Now students, the last question of exercise 6.2 is that x is greater than -3. So again same concept, draw the graph of x equal to -3, ठीक है। x equal to -3, याद रखना यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो जो लाइन बनेगा वो डॉटेड होगा। Now x equal to -3, again it is a line which represent parallel to which axis, y axis। क्योंकि जब x की वैल्यू, ध्यान दो कैसे पहचानोगे कि पैरेलल टू है या कोई स्ट्रेट लाइन है या कैसी भी लाइन है। जब एक वेरिएबल में इक्वेशन दिया हो और उस एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन हो, जैसे कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू -5, लाइक दिस। तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो जो लाइन हम लोग, उसका जो ग्राफ बनेगा, उस लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू किसी एक्सिस के होगा। अगर x की वैल्यू दी है तो जो लाइन बनेगा वो y के पैरेलल होगा, और अगर y की वैल्यू दी है तो जो लाइन बनेगा वो x के पैरेलल होगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो व्हाटएवर लाइन विल बी फॉर्म, लाइन विल बी पैरेलल टू व्हाट, y एक्सिस, ठीक है, ठीक है। मतलब ये एक तरह का, जब एक वेरिएबल की वैल्यू दी होती है तो उस फंक्शन, ये एक फंक्शन भी है, इस फंक्शन की जो वैल्यू, जो ये फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन इसलिए है क्योंकि x की वैल्यू किसी और वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे केवल x ही है। अगर x y दोनों होता तो x की वैल्यू y पर डिपेंड करती, लेकिन यहाँ पे केवल x इक्वल टू -3 दिया हुआ है, तो इसीलिए इस तरह के फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में, कांस्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि x की वैल्यू किसी और वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, x डैश y डैश, ठीक है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। नाउ x इक्वल टू -3,
इसको लाइन को देख के लग रहा है कि जो लाइन हमको मिलेगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो x इक्वल टू -3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, x इक्वल टू -3 यहाँ पर होगा, ठीक है। यहीं से एक लाइन पास करानी है जो किसके पैरेलल हो, y एक्सिस के। सो वो ऐसे होगा, दिस इज द पैरेलल लाइन, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ये लाइन जो होगी वो डॉटेड होगी, डार्क नहीं होगी, तो ये डॉटेड लाइन होगी, ठीक है, ये डॉटेड लाइन होगी, ठीक है। अब जैसे ये लाइन ड्रॉ की, अगेन दो रीजन में बदल गया, अगेन इट डिवाइडेड इनटू टू रीजन। लाइन के लेफ्ट वाला रीजन को फर्स्ट रीजन मान लो और लाइन के इधर वाला रीजन को मान लो सेकंड रीजन मान लो, ठीक है। लाइन के इधर फर्स्ट रीजन, लाइन के इधर सेकंड रीजन। अब कौन सा रीजन लेना है हम लोगों को, तो रेफरेंस पॉइंट से चेक करेंगे। ये हमारा ओरिजिन होता है, दैट इज ओरिजिन व्हिच इज 0,0। सो रेफरेंस पॉइंट, लेट reference point let origin, ठीक है, and the coordinate of origin is 0,0. So let put the value of origin in the inequality was x is greater than -3. So when we will put 0, because only x is there, so the coordinate of origin is 0,0. So when we will put the value of x here, so 0 will be greater than -3. Now after putting the value of origin, the inequality satisfy. 0 is always greater than -3. 0 is always greater than the negative number. हर नेगेटिव नंबर से 0 बड़ा होता है, तो 0 is greater than -3, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर गया। फिर हम देखेंगे कि ओरिजिन जो हम लोग लिए थे उस पे इनइक्वालिटी तो सेटिस्फाई किया, लेकिन ओरिजिन इस लाइन के रिस्पेक्ट में किस रीजन में लाई कर रहा है, तो ओरिजिन जो है वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में राइट हाफ रीजन में लाई कर रहा है। तो मतलब जिस रीजन में ओरिजिन है वही रीजन हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, ठीक है। अगर तो वो रीजन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई किया है। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करता तो हम लोग ओरिजिन के साइड वाला रीजन नहीं लेते, हम लोग कौन सा रीजन लेते, जस्ट अपोजिट वाला, मतलब कि हम लोग ये रीजन लेते। लेकिन ओरिजिन हमारा सेकंड रीजन में लाई कर रहा है और ओरिजिन की वैल्यू पुट करने पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है, तो जिस भी रीजन में ओरिजिन लाई कर रहा होगा वही रीजन हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो मतलब कि इस लाइन के राइट वाला रीजन, मतलब कि ये सारे रीजन इसके सोल्यूशन में आएंगे, ठीक है। इसके इस लाइन के इस तरफ जितने भी आएंगे रीजन वो ही इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। तो यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ linear inequalities in two variable. I hope student whatever concept I had given you that is sufficient to solve the question, okay, and I hope that you have understood all the concept, okay. From my side I gave 110% to explain you, but if you have any doubt then you can ask, okay. Otherwise whatever things I have taught you in this inequalities chapter, if you will follow all the rules, then you can easily solve all types of inequality questions either by the algebraic method or by the graphical method, okay. So by this way student, we have finished exercise 6.2, which is based on the solution of linear inequality in two variable by graphical method, okay. So in the next part of the video we will discuss the solution of linear inequalities when more than two inequalities are given, okay, two or more than two inequalities are given. In that case you have to find the solution by the graphical method. So that thing we will discuss in the next part of the video. So till then students, have a nice day, take care, thank you.